سورہ ملک کی شورہ آفاق آیت بچہ بچہ آشنا ہے اسے، اس کا بھی آدھا حصہ پڑھنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ فرمایا برکت والا ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ پڑھی میں نے آیت ہے، قرآن ممبر پہ منگا لو، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والا ہے وہ خدا جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اب یہ تم پہ چھوڑ دیا، ہاتھوں والا خدا ڈھونڈو یا خدا کے ہاتھ ڈھونڈو۔ کہنا یہ ہے سردار صاحب، قرآن پڑھیں آپ، کہیں کہتا ہے میں برکت والا ہوں، جیسا کہ کسی آیت میں آپ نے سنا، بلکہ کہیں نام لے کے بھی کہتا ہے اپنا، جیسا کہ سورہ اعراف میں تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے وہ اللہ جو عالمین کا رب ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، برکت والا ہے وہ جو اللہ ہے۔ یعنی جگہ کہیں کہتا ہے اللہ برکت والا ہے۔ شیراز صاحب میں چکر میں ہوں، کہیں کہتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے محمد تیرے رب کا اسم بھی بڑی برکت والا ہے۔ اور یہ تو بچے بھی جانتے ہیں، اسم اور ہوتا ہے، فرق مسمى اور ہوتا ہے۔ غضنفر میرا اسم ہے، وہ میں نہیں ہے، مسمى میں ہوں، اسم اور ہے۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے تبارک اسم ربک، تیرے رب کا اسم برکت والا ہے، تو مانا پڑے گا اسم اللہ نہیں، اسم اور ہے، اللہ اور ہے۔ میں پہلے نتیجہ سمجھا دیتا ہوں، پھر دو چار باتیں کرتا ہوں آپ کے ساتھ۔ زیارتوں پہ جاؤ گے، جو گئے ہو، اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو وہ تائید کر دینا، باقی جا کے تجربہ کرنا۔ وہاں جا کے یہ دو موقع کے گواہ ہیں، ان کو زیارت متلقہ نجف میں پڑھائی امیر کائنات کی، اور اس میں یہ جملے موجود ہیں، السلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے پسندیدہ اسم میرا سلام۔ اب نتیجہ سردار صاحب کیا نکلا؟ علی صرف اللہ کا اسم ہی نہیں، پسندیدہ اسم، اللہ کا پسندیدہ اسم ہے علی۔ یوں نماز پڑھ رہے ہو اللہ کے پسندیدہ اسم کو باہر کر کے، جو اسم اللہ کو پسند ہے اسے نماز سے باہر نکال رہے ہو، پھر صفدر شاہ جی بہتر ہے نماز پڑھو ہی مت، کیونکہ جب نماز نہ پڑھنا کم جرم ہے۔ میں نے کہا نماز نہ پڑھنا تھوڑا جرم ہے، علی کو نماز سے باہر نکالنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کا صرف اسم نہیں، اللہ کا سردار صاحب اسم 14 کے 14 اللہ کا اسم ہے۔ میں کیا کروں، سارے کے سارے اس کا اسم ہے، علی اس کا پسندیدہ اسم ہے۔ قرآن نو میں برپے سورہ بقرہ کہہ رہی ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ۔ اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا اظلم کون ہو سکتا ہے جو مسجد میں میرا اسم لینے سے روکے؟ ظالم نہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ۔ مقسم اللہ کے قریبان میں ہاتھ ڈال کے پوچھنا ضرور، ظالم پہ اللہ کی لعنت ہے، اظلم پہ کیا ہونا چاہیے؟ اور یہ بھی حقیقت ہے امجد کہ اللہ فرق اپنے منکر کو ظالم کہتا ہے، اللہ اپنے منکر کو ظالم کہتا ہے، علی کے منکر کو اظلم کہتا ہے۔ پالنے والے اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے میں نظر نہیں آتا، علی دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی لیے حدیث ہے رسول کی کہ ان اللہ لاشد غضبا علی من اشرک بولایت علی بن ابی طالب ممن اشرک باللہ۔ فرمایا جو اللہ سے شرک کرے اس پہ اللہ تھوڑا غضبناک ہوتا ہے، جو علی کی ولایت میں شرک کرے اس پہ زیادہ غضبناک ہوتا ہے۔ کھوتے کو پھر بھی حجت کی پہچان ہے۔ ایک حدیث آ گئی ہے سامنے، جبر مشیت کی طرح، یہ سامنے پڑھتا ہوں۔ تمہارے امام صادق سے کسی بندے نے پوچھا حل یدخل الجمل الجنت، مولا کوئی اونٹ یا اس کی جنس جنت میں جائے گی؟ فرمایا نعم ناقۃ صالح ومن یموت فی کربلا۔ فرمایا صالح کی ناقہ جنت میں جائے گی اور ہر وہ اونٹ جو کربلا میں مرے وہ بھی جنت جائے گا۔ ناقہ صالح وہ نہیں، اب ذہن میں رہے،
हाज़िही नाक़तुल्लाह लकुम आयतन, सूरह हुद पढ़ना। अल्लाह कह रहा है ये नाक़तुल्लाह है, ये आयतुल्लाह है। या वो जन्नत में जा रही है या वो ऊंट जो करबला में मरे, फरमाया वो जन्नत में जाएगा। सर उठाना, फरमाया हल यदखुलुल हिमारुल जन्नता, मौला कोई गधा भी जन्नत में जाएगा? काला नाम हिमारु बलअम वमन यमूतु फी करबला, फरमाया बलम बाऊर का गधा जन्नत जाएगा और जो गधा करबला में मर जाए। खुदा के सब मेरा दिल तकलीफ के आलम में भी फर्क चाह रहा है कि मैं उड़ जाऊं और वहां कहीं सरहद अर्श पे खड़े होकर जमीन पे चांद के अली वालों से खिताब करूं। हाँ, जिसके यहाँ शहर मवद्दत है उन्हें खोल के रखना, मेरे साथ उड़ना। जो उठ कर बला में मरे जन्नत जाएगा। जो गधा, फरमाया बलम बाऊर का गधा। बलम बाऊर आलिम भी था, आमिल भी था, इसमें आजम जानता था, मुस्तजाबुद दावत था, जिसने मूसा को बद्दुआ दी जी। और 40 बरस दश्ते तीह में मूसा को रास्ता नहीं मिला। ज़ात वाहिद की कसम, रोज जहां से शुरू करते शाम को फिर वही वापस आ जाते। ये बलम बाऊर की बद्दुआ थी। हजरत मूसा ने आखिर जगह तंग आके पूछा, पालने वाले मेरे साथ हो क्या रहा है? कहा बलम बाऊर ने बद्दुआ दी है तुझे। तब फिर मैं तेरी हुज्जत हूं, मेरी दुआ भी कबूल करेगा? हाँ, फिर उसका ईमान छीन ले। साफ ज़ाहिर है जो हुज्जत को बद्दुआ दे वो क्या साहिब ईमान है? अब न बलम बाऊर से कोई बड़ा आलिम हो सकता है, न बड़ा आमिल के जो इसमें आदम जानता है। हाँ, ये मूसा से जंग अमाले का जब लड़ी है मूसा ने, तो ये भी आया है लड़ने गधे पे सवार होके। बड़ा तेज रफ्तार गधा था इसका, थक तो नहीं गया ना? रास्ते में एक दोस्त मिला, पीछे गधा उड़ता आ रहा है, आगे दोस्त के लिए बाग खींची, गधा रुक गया। उसे मुझे बलम बाऊ कहाँ जा रहे हो? मूसा से लड़ने। गधे ने सुन लिया, अब तू मेरा अब्बा हो गया कि मैं तुझे उठा के चलूं? हुज्जत से लड़ने जाए और मैं तेरी सवारी बनूं? है हराम जानवर। लेकिन तुझे हुज्जत से लड़ने जा रहा है बलम बाऊर, कहते मैं तेरी सवारी नहीं बनता। इसमें मुख्तसर बात लंबी है। मार मार के गधे को बलम बाऊर ने मार डाला, चल के नहीं दिया। अल्लाह ने कहा जिब्रील इसका नाम जन्नती फेहरिस्त में शामिल कर दे। तो मौला फरमाते बलम बाऊर का गधा जन्नत जाएगा और जो गधा करबला में मरे। अब सर उठाना, और इसी जुमले के लिए मैंने अमजद हदीस पढ़ी। मौला हल यदखुलुल कल्बु फिल जन्नह, मौला कुत्ता भी जन्नत जाएगा? फरमाया नाम कल्बु असहाबिल कहफ व मन यमूतु फी करबला, असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नत जाएगा और जो कुत्ता करबला मर जाए वो जन्नत जाएगा। मुझे शिराजिया और कुछ नहीं कहना, घर जाके सोचना जरूर। करबला मरने वाला कुत्ता तो जन्नत जाए और इल्म पढ़ने वाला मौलवी जहन्नम जाए। उसकी वजह क्या है? कि कुत्ते को भी इदराक है, कुत्ते को भी इदराक है, शऊर रखता है मालिक का। और मौलवी जितना बड़ा आलिम क्यों ना हो जाए, शैतान से बड़ा आलिम तो हो नहीं सकता। अब शैतान एक छोटी सी हुज्जत को सजदा करने की पैदाइश में एक छोटी सी हुज्जत को सजदा नहीं किया। सोचते रहना, तन्हाई में बैठ के सोचना। आदम जमीन का खलीफा है, अली आलमीन का खलीफा है। आदम जमीन पर खलीफा, अली आलमीन पर खलीफा। जिसने जमीनी खलीफे को सजदा नहीं किया, 6 लाख साल की इबादत जाये करके शैतान बना, और जो आलमीन के खलीफे को नमाज से निकाल रहा है। फिर वापस आता हूं, एक और हदीस आ गई है मेरे सामने, पढ़ दूं जरा। हदीस रसूल की है, इस जैसी हदीसें बड़ी हैं, उनमें की एक आपको सुनाने लगा हूं। फरमाया लो अन्ना अहदकुम सफ़ा क़दमैहि बैनर रुकन वल मक़ाम अल्फ़ाओं सुम्मा अल्फ़ाओं याबुदुल्लाह साम नहारहु व क़ाइमन लैलहु व क़ौला लहु मिन अल अर्ज़ि मौलन अनफ़क़हु फ़ी सबीलिल्लाह व इबादुल्लाह ममलूकन लहु फ़अअतक़हुम व बअद हाज़ल ख़ैर अल कसीर क़ुतिला शहीदन बैन सफ़ा वल मरवा सुम्मा जाअ बाग़िज़न लिविलायति अलिय्यन ज़ुज्ज बिअमालिही फ़िन्नार। फरमाया लो अन्ना अहदकुम, अब रोक के पढ़ूंगा। लो अन्ना अहदकुम सफ़ा क़दमैहि बैनर रुकन वल मक़ाम, फरमाया तुम में से कोई आदमी रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान 1000 साल इबादत करे। ये रुकन और मकाम कहाँ है? अच्छा, खाना खुदा में। शिराज साहब ने कहा खाना खुदा में है मकाम इब्राहिम और रुकन, ठीक है। यानी अल्लाह के घर के सामने खड़े होकर एक तरफ रुकन एक तरफ मकाम, दरमियान में 1000 साल मुख्तलिफ बातें करें। तवज्जो, मार्जिन तक की जबान का मालिक फिर कहता है सुम्मा अल्फ़ाओं में, फिर उसे अल्लाह दूसरे 1000 साल अता करे। उसमें क्या करे? साम नहारहु क़ौम लैलहु, 1000 साल रोजाना दिन में रोजा रखे,
रात भर खड़े होकर इबादत करे। पहली 1000 साल मखलूत इबादत, कभी कुछ करे कभी कुछ, और आखिरी 1000 साल दिन में रोजा, रात में क़याम। तवज्जो, आगे रसूल फरमाते हैं वकान लहू मिल अल अर्ज़ मौलन फअनफ़क़हू फ़ी सबीलिल्लाह। पूरी जमीन उस बंदे के माल और दौलत से भरी हुई हो और अल्लाह की राह में बांट दे। जितनी जगह में शमियाना लगा हुआ है ना, इसी जगह में करोड़ों अरबों की दौलत आ सकती है। और रसूल कह रहे हैं मिल अल अर्ज़, सारी जमीन, दुनिया के कंप्यूटर करोड़ों साल ज़रबे देते रहे, हिसाब नहीं बनता कि जमीन पर कितनी दौलत आ सकती है। फिर मैं पूरी जमीन उस बंदे की दौलत से भरी हुई हो, अल्लाह की राह में खर्च कर दे, सरठा जाएगा कहाँ? इबादुल्लाह ममलूक लहू फ़अतअहू। पूरी खुदाई के बंदे उस बंदे के गुलाम हो, उन्हें अल्लाह की राह में आजाद कर दे। 1000 साल मखलूक इबादत करे, फिर 1000 साल दिन में रोजा रखे, रात में खड़े होकर इबादत करे, पूरी रूए जमीन उसकी माल और दौलत से भरी हुई हो, राह इलाही में खर्च कर दे, पूरी औलाद आदम उसकी गुलाम हो, उन्हें अल्लाह की राह में आजाद कर दे। सुम्मा बाद हाज़ल खैर कसीर क़ुतिल शहीदन बैन सफ़ा वल मरवा। और इतनी नेकियों के बाद सफा मरवा के दरमियान शहीद हो के मर जाए, बचाओ बागिरन विलायत अली जुज्जा में आवाज़ फिनाल। अगर मेरे भाई अली की विलायत के बगैर आया, अमलों समेत जहन्नम में डाल दिया जाए। मैंने शिराज साहब बेगम अल्लाह से पूछा था कि वजह क्या है, ये जो तुझसे भी छोटा, तेरे नबी से भी छोटा, इसकी विलायत के बगैर हजारों सालों के अमल कबूल नहीं, जिन नेकियों को कलमे न लिख सके वो रद्द। वजह अल्लाह ने मुझे जवाब दिया, उसकी वजह ये है, जो नमाज पढ़ते हो अली की विलायत का जाहिर है, खुद अली मेरा जाहिर है, अली मेरा जाहिर है, मेरा अक्स है, मेरा जिल है। मैं खुदा की कसम हैरान हूं, अली है एक, बैक वक्त रिश्ते दो से है, दोनों से छोटा, मुकद्दर वाला सल्लल्लाहु इतना है, दोनों बड़े, इसे अपनी अपनी तरफ खींचते हैं, खींचातानी होती रहती है। हाँ, अल्लाह कहता है ये नफ्सुल्लाह है, रसूल कहता है ये नफ्स नबी है। युहज़्ज़िरुकुमुल्लाहु नफ्सुल्लाह अनफुसना व अनफुसकुम। नफ्स नबी, अल्लाह कहता है मेरा वली है, मोहम्मद कहता है मेरा वसी है, मोहम्मद कहता है मेरा तर्जुमान है, अल्लाह कहता है मेरी ज़बान है, अल्लाह कहता है मेरा खानादाद है, रसूल कहता है मेरा दामाद है। और हम आज तक खुदा की कसम सुसर भिखारी क्यों ना हो, दामाद शहंशाह क्यों ना हो, कभी कोई सुसर दामाद के नाम पे शाबाश बेटे जाफर बेटे फख्र नहीं करता। ये करता है क्योंकि आर समझी जाती है, बेटे के नाम पे तो फख्र होता है, दामाद के नाम पे नहीं। कुरान गज़नफ़र के सर पे रखा आलम मेरे हाथ में दे, शब मेराज आसमान शशम पे जहां नबी इकट्ठे हो रहे थे, अचानक तेरे मौला खैबर शिकन की आमद हुई। इब्राहिम ने पूछा मन हाज़िल मुक़बिल, ये आने वाला कौन है? नबी ने छाती चौड़ी करके कहा हाज़ा शेर, मेरा दामाद है। मोहम्मद जैसा इज्जतदार जो खुद कहता है काना अबी इब्राहिम गय्यूरन व अना अगयर मिन्हु, फरमाते मेरा बाप इब्राहिम गय्यूर था, मैं उससे भी बड़ा गैरतमंद हूं। नमाज के नाम पे फख्र कर रहा है, दोनों में खींचातानी हो रही है। और सफदर शाह जी ये भी देखा गया है, हाँ, कि जरूरत के वक्त भी दोनों इसे बुला लेते हैं। जब कभी रसूल को छुप के जाना हो तो इसे बिस्तर पे सुला देता है, और कभी अल्लाह को छुप के रहना हो तो इसे पर्दे में बुला देता है। बुलाया क्यों है पर्दे में? देखो जब अल्लाह हदीस कुदसी में कह रहा है, और हदीस कुदसी वो कलाम है जो बगैर फरिश्ते के आया, पर अल्लाह ने रसूल से गुफ्तगू की, उसमें अल्लाह कह रहा है ला तरा इलैया अब्दुन अनमुलतन ला तरा इलैहि शिब्रन व ला तरा इलैया शिब्रन ला तनौतु इलैहि सरान। फरमाया अगर मेरा बंदा मेरी तरफ एक पोर बढ़े, मैं बालिश बढ़ता हूँ, कोई मेरी तरफ बालिश बढ़े, मैं एक हाथ बढ़ता हूँ। शब मेराज क्या था शिराज साहब? सुम्मा तना फतदल्ला, इधर से मोहम्मद बढ़ रहा था, इधर से मेरा रसूल बढ़ रहा था, इधर से रब्बे जलील बढ़ रहा था। मन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, कुरान कहता है अल्लाह से बड़ा वादा वफा है कौन? अब रसूल रुकेगा लेकिन तो खुदा रुकेगा। मैं अहले सुन्नत की तफसीरों में दिखा सकता हूँ कि तना की ज़मीर रसूल की तरफ है, तदल्ला की अल्लाह की तरफ से है, इधर वो रसूल जा रहा है।
उधर तौहीद इस्तकबाल के लिए बढ़ रही है और इसी रफ्तार से बढ़ रही है। ये पोर बढ़ता है, वो बालिश, ये बालिश तो वो हाथ पे दिल में सोच रहा है अभी रुकेगा, अभी रुकेगा। इम्कान की हद नीचे रह गई। काबा कौसैन क्या है? ये इम्कान की हद है। काबा कौसैन के बाद आएगा मुमकिन नहीं, वजूब है। और कुरान कहता है कि रसूल काबा कौसैन को पीछे छोड़कर और अदना तक चला गया। अब मुझे नहीं खबर कि किसका कलेजा चर्र बोलेगा, किसके रुखसार पे आए तो मवद्दत लिखी जाएगी और गुलजार खिल जाएगा। जो ही और अदना पे कदम रखा जब मेरे रसूल ने आवाज कुदरत है यारी, मैंने तुझे वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, उज़ुनुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जमुल्लाह, नफ्सुल्लाह बनाया ही आज के लिए था। वो आगे बढ़ के मुझ में जम हो जाएगा, दरमियान में आके उसे रोक, मेरा पर्दा रख। अब अल्लाह जाने की क्या है। इस जगह को उलमा ने कहा है मज़ालिकुल अक़दाम, यानी वो ढलवान जहां से पांव फिसल जाए। क्योंकि एक तरफ तौहीद है, एक तरफ बंदगी है, एक तरफ वजूब है, एक तरफ इम्कान है। मेरा इल्म इतना सा, वो लाहद लोग और आगे खालिक। मुजफ्फर कौन है इनकी हदें बनाने वाला? अल्लाह जाने ये दरमियान में आने वाला है क्या, जिसने माज़ागल बसर की नजर को पार नहीं जाने दिया और तौहीद की तजल्लियात को इधर नहीं आने दिया। मैंने कहा था ना, कभी रसूल ने छुप के जाना हो, कभी रसूल ने छुप के जाना हो तो अली को बिस्तर पे सुला देता है, कभी जली ने छुप के रहना हो तो पर्दे में अली को बुला लेता है। इसीलिए रसूल ने एक दिन खड़ा था, ला यह जो अलियन अनिल्लाह हिजाबुन वला यस्तुरुहु सित्रुन लिअन्नहु हुवा सित्र वल हिजाब। मैं कोई पर्दा हो, कोई हिजाब हो, अल्लाह अली से छुप नहीं सकता। कोई पर्दा हो, कोई हिजाब हो, अल्लाह अली से छुप नहीं सकता। या रसूलुल्लाह क्यों? फरमाया हुवा सित्र वल हिजाब, इसलिए कि जिस पर्दे में जली रहता है वो पर्दा अली ही तो है। और तअज्जुब सरदार साहब ये है, जब रसूल के बिस्तर पे हो सारी रात बशरियत देखे और यही कहे हम कि रसूल सो रहा है, मोहम्मद सो रहा है, नबी सो रहा है, चलो बाकी छोड़ दो। आपका भतीजा लाख कपड़े बदल के आए, आपकी पहचान में नहीं आएगा क्या? भतीजा जो है, चलो और भूले तो भूले। अबू लहब ने 3 मरतबा झांक के देखा दीवार से और कहा मोहम्मद अभी सो रहा है, मोहम्मद अभी सो रहा है, बस वसूल कर लो। हाँ, सरसरी साहब कह के मैं गुजर रहा हूं, यही तो तलिस्म किबरियाई है। इसलिए मैं अली को तलिस्म पहेली कहता हूं कि है दोनों में बांटा हुआ, उसका भी नफ्स उसका भी नफ्स, उसका वली इसका वसी, उसकी ज़बान इसका तर्जमान, इसका खानादाद उसका दामाद, है दोनों से रिश्ता। मोहम्मद के बिस्तर पे हो तो बशर कहता है नबी सो रहा है, अल्लाह के पर्दे में हो तो नबूवत कहती है कि खुदा रो रहा है। अक्स है उसका, साया है उसका। किसी अक्ल के अंधे को भी, किसी जानवर को भी साया दिखा दो ना, जानवर गायब हो, साया नजर आ रहा हो, बच्चा भी पहचान लेगा ऊंट का साया है, घोड़े का साया है, इंसान का साया है और अली जिल्ले इलाही है। बाद में जब बेटे बादशाहों को जिल्ले इलाही कहने का रिवाज शुरू हो गया, सबसे पहले अल्लाह का साया रसूल ने अली को कहा था और ये कहा था इन्ना सुल्तान जिल्लुल्लाह, ये सुल्तान अल्लाह का साया है। और अक्स अक्स समझते हो, बस खत्म हो गई मेरी गुफ्तगू। अक्स कभी शीशा देखा है? नहीं देखा यार, आज तो हर घर में बड़ा बड़ा शीशा होता है, बड़े वाला पर्दे आज़म होता है ना, उसके सामने खड़े हो जाना, उसमें क्या होगा? तुम जैसा दूसरा, लेकिन वो तुम नहीं। अब जो उसे तुम कहे, उसने तुमसे शिरक किया कि उसने तुम्हारे अक्स को तुम्हारा शरीक ठहराया। वो तुम नहीं, तुम्हारा अक्स है। क्योंकि तुम्हारा अक्स है, कामत तुम्हारी जितनी, रंगत तुम्हारी जैसी, चेहरा तुम्हारे जैसा, हर शय तुम्हारे जैसी,
اور تجربہ کرنا آج کرنا، ابھی 2 دن میں نے تمہارے بارگاہ میں حاضری دینی ہے نا، اور کل پھر آ کے مجھے بتانا، تم شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھانا، وہ اندر والا بھی ہاتھ اٹھائے گا، وہاں کھڑے ہو کے سردار صاحب کہنا میں سردار عاشق خان ہوں، وہ اندر والا بھی بولے گا میں سردار عاشق خان ہوں۔ نہیں نہیں، اب مقصر ملا علی کا نمک کھا کے پھونکنے والے اس خارش زدہ کتے سے پوچھ کہ لگاؤ اس عکس پہ فتوا، وہ کہے گا میں کیوں، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے، کیونکہ عاشق خان کا عکس ہے، جو عاشق خان کرے گا وہ کرے گا، جو عاشق خان کہے گا وہ کہے گا، اور نمک حرام و علی جلی کا عکس ہے، عرش پہ اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں میں رازق ہوں، زمین پہ علی کہتا ہے میں خالق ہوں۔ کے پاپوش علی جاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی میرا